سی یار لو لگی تھی کہ جس کو برفی بھی اس کے محبوب تک لے جایا کرتی تھی ہیں اسی یہ کلو کلو ہم چوب جانے لیکن کبھی شکر بھی نہیں ادا کیتا. حقیقت بتا رہا ہوں حضرت آپ, اتنا ہم دور چلے گئے. میں قبلہ روز محفلوں میں جانا ہوتا ہے نا, تو میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں. میں نے صبح بھی تقریباً 2 ختم ہے سیالکوٹ میں, تو ختموں پہ اکثر و پیشتری ہوتا ہے کیونکہ محفل میں یہ ماحول بنتا ہی نہیں ہے. تو ختم پہ ہم بیٹھے ہیں نا, ختم ہو گیا. مثلا جیسے آج کل سردی چل رہی ہے تو کنوں کا موسم ہے, مالٹے کا موسم ہے, تو کیا ہوتا ہے ایک بندہ مالٹا چھیلتا ہے کھا کے نا, تو پھر دوسرے کو بھی دعوت دیتا ہے. کیا کہتا ہے, کوئی کھا لائے مٹھائی. تو بھائی اب دور اس طرح کا نا, بات کر کے مار کھانی ہے. تو ہم بھی نہیں کرتے لیکن دل میں خیال آتا ہے یار کدی کو بھی تو لبے نا جڑا ہے کبھی قربان جاواں دے تو جن جنہیں میٹھا کر چھڑے. یہ نہیں کہتا کوئی, کبھی کو ملے ہیں یار جو یہ بھی کہے کہ قربان. بھائی قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, بھائی میٹھا ہونا مالٹے کی اپنی صفت نہیں ہے ذاتی. بھائی اس کی اگر اپنی ہوتی تو سارے میٹھے ہوتے. اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے ہی آم میٹھے ہوتے. نہیں بھائی, کوئی ہے جو کسی کو پھیکا کر رہا ہے, کسی کو میٹھا کر رہا ہے حضرت, اور کوئی نہیں ہے حضرت. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. ہاں ڈھونڈا مجھ سے غلط جگہ رہے ہیں حضرت. ہاں وہ تمہیں شرک پور شریف میں ملے گا. ہاں وہ میں چلو نام نہیں لوں گا, ہاں وہ وہاں نہیں آپ کو ملے گا حضرت. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. نہیں یار ہم بھول گئے ہیں. اور یہ نہیں کہ وہ میٹھی چیز دی, چلو آپ کے ذہن میں شاید آئے نہیں. اگر کسی نے نمکین بھی دے دی نا, مثلا جو ہم نے دیکھا, کسی نے ٹک بسکٹ دے دیا, کسی نے نمک پارا دے دیا, ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا کھا کے نا پھر وہی سوال, یہ تو لونا ہے, تو سائیں جی لون پایا لونا ہی ہونا ہے. کتوں لے آتا لون؟ سائیں جی دکان تو, دکان والے نے سائیں جی نے کھیوڑے منگوایا, کھیوڑے والے نے سائیں جی تو پہاڑ نے, پہاڑاں چ لون کتوں آ گیا؟ سائیں جی اللہ پاک نے پایا. تو بھائی ہم ذرا مولوی لوگ ہیں نا, ہم اتنی جلدی نہیں مانتے کوئی بھی, ٹھیک ہے جی. ایک دن ہم نے آپس میں بیٹھ کے نا تھوڑا ایک سلسلہ بنایا. میں نے کہا لے بھی سائیں علی اکبر دا اینڈ کرنا ہے, ہاں بھی نہیں بھلا کی کرنا ہے. میں تھا, میں نے 3 بندے ساتھ اور ملائے, اور 3 بندے نا ہم نے ساتھ اور ملائے. میں نے کہا بھئی سائیں علی اکبر کو اللہ نہیں کہنا, دیکھتے ہیں بھلا کیا کرتا ہے. اور جتنے جتنے شہروں کے نام ہیں نا سب نے لینے ہیں. میں کیونکہ امامت کروائی ہے میں نے 1 سال اس قصبے میں, تو وہ مسجد کی دکانوں میں نا ایک حلوائی کی دکان بھی تھی. وہ سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ آ رہے تھے, میں نے اس سے برفی کی ڈیلی لی. تو سائیں علی اکبر آئے تو میں نے ہاتھ پکڑ کے نا ٹول پہ بٹھا لیا, بینچ پہ. تو انہیں کہتے ہیں جی حافظ جی, جی حافظ جی, بات کو دہرایا کرتے تھے. میں سائیں جی برفی کھانی, برفی کھانی, برفی کھانی, پکڑ کے نا تھوڑی سی کھا کے تو وہی سوال, حافظ جی ہے تو مٹھی ہے, تو میں سائیں جی چینی پائی ہے مٹھی ہونی. وہ اپنی عادت کے مطابق کتوں نہیں آتی جی چینی. میں سائیں جی شکرگڑھ والے نے, میں سائیں جی ناروال والے نے, میں سائیں جی ظفروال والے نے, میں سائیں جی پسرور والے نے, میں سائیں جی بڑیانے والے نے, میں سائیں جی گنے والے نے, میں سائیں جی وڈے گنے تو. وہ مجھے جتنے آتے تھے نا میں نے سارے لے لیے. میں نے دوسرے کو کہا چل تو شروع ہوا. وہ شروع ہوا, اس کو بھی 2.5 گھنٹے, میں آپ کو بتا 2.5 گھنٹے ہم اسے سر مارتے رہے. بات تب بھی ختم ہوئی جب نام اللہ کا لیا. وہ کچا نہیں تھا حضرت, وہ پکا تھا. تو پھر حضرت جب میں نے حدیث پاک پڑھی نا تو پھر مجھے سمجھ آئی, میں اوے جس کو ہم دیوانہ کہتے رہے ہیں وہ تو اپنے محبوب کی سنت پہ چل رہا تھا. میں نے باقاعدہ حدیث پاک پڑھی کہ حضور نبی علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ حدیث پاک میں 2 چیزوں کا تذکرہ ہے, ایک بچہ اور ایک پھول. کہ جب حضور نبی علیہ السلام ان دونوں میں سے کسی کو دیکھتے تو آقا کریم علیہ السلام یہ نہیں فرماتے تھے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے, بلکہ حضور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے کہا نا پانڈے نال نیوں لگایا واہ تیری دا نہیں, اور نیوں لگائی اس کاریگر تائیں جنہیں یہ چیز بنائی ہے, اور نیوں لگاؤ یار, نیوں لگاؤ, اپنا وقت ضائع نہ کرو, نیوں لگاؤ, لو لگاؤ, لو لگاؤ, لو لگاؤ. ہاں یہ دنیا بڑی بے وفا ہے, بڑی بے وفا. ہاں لو لگاؤ, نماز کی پابندی کرو, ہاں
माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, तो हमारे जो सूफिया का मसलक है उनका तो यही है ना, हथकार वाल दिल यार वाल, ठीक है जी। तो मैं कहता हूँ चलो यार तुम इतना ही कर लो, थोड़ा इसको बदल लो, तुम इतना कर लो, हथकार वाल जी भी यार वाल है, थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ी बावजू रहो, झूठ ना बोलो, चुगली ना करो, गिबत ना करो। हाँ, ये जुबान इसलिए नहीं दी गई है अपने अल्लाह को याद करते हैं, अपने अल्लाह को और करके तो देखो हज़रत, फिर देखो तो सही होता क्या है। ये हमारे एक बुजुर्ग हैं सिलसिला आलिया कादरिया शरीफ, अल्लाह, हज़रत सैयदना हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मुरीद हैं हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला, मुरीद हैं हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला, ठीक है जी। तो ये लिखा है कि हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जो इब्तिदा है ये कुछ अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो फिर अल्लाह पाक ने आपको तौफीक तौबा दी और आपने हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दस्ते पाक पे तौबा की और 5,500 की तौबा नहीं की थी। वो जो बाबा साहब कहते हैं कैसी तौबा हो है यार, तौबा लटके याद विशकार, और तौबा में तू उम्र में आई, तौबा दी तेन समझ नहीं आई है, हम जैसी तौबा नहीं की, पक्की तौबा की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, पक्की तौबा की है, तदम आखिर अपनी तौबा पर कायम और दायम रहे। तो इमाम याफ़ई रहमतुल्लाहि तआला ने लिखा है कि जब हजरत मुरीद हो गए ना, तो जो सूफिया का सिलसिला है, हजरत ने आपको इसमें जात तलकीन किया, अल्लाह, क्या तलकीन किया, वाह जी वाह, मैं को वोट मांग बैठा हूं, क्या तलकीन किया, नहीं भैया, क्या तलकीन किया, नहीं, मजा नहीं आया यार, अल्लाह का शुक्र है सारे जवान बैठे हो यार। और मैं आपको हकीकत बताऊंगा भाई, जब भी जैसे मैंने इब्तिदा की थी ना, मैं अभी वहीं खड़ा हूँ, तो पता लग जाया करे भाई नाम भी है, और अल्लाह की ज़ात की कसम उठा के कह रहा हूँ, शुक्र करो उस ज़ात ने तुमसे कोई इम्तिहान नहीं मांगी। तानू कलीना दे बह के कहन डे कहो अल्लाह कुर्बान जाऊं हजरत बिलाल हबशी पर जो कोयलों पर लेट कर भी हाथ हाथ किनारे मारा। सियालकोट में मेरे एक बाबा जी हैं, वो बड़े दुख से कहा करते हैं हमारे हालात देख के, आप फरमाते हैं साडे वड्डे वो ने जिन्होंने लोहे दे चने चबे और असी होवां के मक्खन खांदे हैं भी दंद किस दे ने, कलीन विछे हैं, इधर भी तुमने बैठ के अल्लाह ने कहना तो कहना कहाँ है, उस जगह का भी तो मुझे नाम बताओ ना है। ये कुर्बान जाऊं नहीं फिर जो कोयलों को लेट के भी हाथ हाथ किनारे मारा करते थे हैं, वो वही थे जिन्होंने चंद नेज़ों चंद तलवारों से मैदान बदर सजा दिया। हमसे तो अल्लाह ने कोई इम्तिहान ही नहीं मांगा, इम्तिहान वो दे गए हैं। क्या तलकीन किया, क्या तलकीन किया, क्या तलकीन किया, और अपनी तस्वीर अनायत फरमाई, फरमाया हबीब पक्का अल्लाह। भाई इंसान है ना, वसवसे भी हैं, खदशात भी हैं, दिल में ख्याल आया, हजरत फरमा रहे ने असबाब में तरक कर, और अल्लाह पका, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, सिलसिला कैसे चलाना है। तो अपना जो खदशा था, जो ख्याल था, जो वसवसा था, शेख की बारगाह में पेश किया। तो हुजूर ने फरमाया, आपने फरमाया हबीब खुद पैदा हुआ है, नहीं हुजूर। अपनी बीवी का खालिक तू है, नहीं हुजूर। अपने बच्चों का खालिक तू है, नहीं हुजूर। कौन है, जनाब अल्लाह। फरमाया फिर वो खालिक ही नहीं है, वो राज़िक भी है, तू बैठ करेगा वो। और मैं वो जो अल्लाह हज़रत ने कहा ना, पहले ही तूने ऐ करीम लुकमा तर खिलाए, दुआ किया करो भाई, या अल्लाह परौंठे खान की आदत पै गई कि सुखियां ते ना ले, हकीकत है भाई, या अल्लाह परौंठे खान की आदत पै गई कि सुखियां ते ना ले। आ गई आजमाइश हजरत है, फकीरी आई, फिर एवं तो नहीं किसी ने कहा की काट फकीरी वाली चढ़ सूली ते बहना, कोई सौखा काम नहीं है फकर हजरत जी, आई फकीरी। फिर तो हजरत ने तो सबर शुक्र कर लिया ना, लेकिन इमाम याफ़ई रहमतुल्लाहि तआला ने लिखा कि बीवी साहबा से नहीं हुआ। वो 6 दिन गुजरे थे तो आके ना बड़ा आपसे जरा मिजाजन तलक थी थोड़ी, कहती हैं हबीब ये क्या आप तस्वीर लेके बैठे रहते हो, हमसे नहीं ये सूखी और मांगी रोटियां खाई जाती, जाओ उठो जाके को मेहनत मजदूरी करो, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तरना वाला कहें। दाना आदमी थे और उससे बहस नहीं की, आपने लोटा कुरान पाक मुसल्ला तस्बीह ली और जंगल चले गए। सूफिया तो पहले दुआ करते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अदब अंजुमन आराई हो। सूफिया तो पहले दुआएं मांगते फिरते हैं, बस मिला माहौल ली तस्बीह और हजरत सारा जंगल भी झूमा हजरत के साथ।
آپ نے پھر اس میں ذات کا ورد شروع کیا، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ کیا لطف ہوگا حضرت، جنگل میں جھومتا ہوگا حضرت کے ساتھ۔ اور امام یافعی لکھتے ہیں وہ دن گزرا تو حضرت جو ہے نا وہ گھر تشریف لے آئے، بی بی صاحبہ پہلے ہی منتظر کھڑی تھی۔ جب گھر آئے تو بی بی صاحبہ نے آتے سب سے پہلا سوال یہ کیا، حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا ہاں کی۔ تو پوچھتی ہے اگر مزدوری کی تو پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں نے اس کو ٹالا۔ میں نے کہا نہیں، وہ سارے ہی مانگ رہے تھے لیکن مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی، کیونکہ میں نے جس کی مزدوری کی نا وہ مالک بڑا کریم ہے کریم کے نہیں حضرت؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ او بھائی کریم ہے تے میرے ہار دے پھرن ٹرنڈے دے نا حضرت ہیں۔ ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیش نکالا، ایک گناہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ اس ذات کو پتہ ہی نہیں ہم رات کو اپنے کمروں میں چھپ کے کیا کیا کرتے ہیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء انہ علیم بذات الصدور۔ سارا ہی پتہ ہے اسے، لیکن کیا ہے کریم ہے، سبحان اللہ۔ کوئی نہ یہ سمجھے کہ پتہ نہیں ہے، لیکن کیا ایک گناہ جو ماں پیو دیکھے دیوے دیش نکالا، لاکھ گناہ پہ میرا مولا دیکھے پردے پاون والا ہے، پردے پاتا ہے۔ کوئی نہیں ایسا یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا پہلوان بن گیا، تو پہلوان نہیں ہے، وہ کریم ہے۔ باقی انہ بطش ربک لشدید انہ ہوا یبدی و یعید ہے، کوئی اس وہم میں مبتلا نہ رہے حضرت، نہیں، ہاں وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے۔ وہ بی بی صاحبہ کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تو اس طرح کریے گا، کل پھر لے آئیے گا، چلو 2 دن کے زیادہ پیسے آ جائے۔ اب فرماتے ہیں میں اگلے روز پھر گیا، ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کی اے نا علمہ وچ نہ پا سانوں کوئی یار دی گل سنا سانوں۔ اللہ بعض احباب نے اس مصرے کا غلط مطلب لیا ہے اور نعوذ باللہ علم اور علماء کی بے ادبی کرتے پھرتے ہیں، نہیں ہے، علم کی بڑی شان ہے اور علماء کی بھی بڑی شان ہے۔ دیکھو نا اللہ پاک اپنے محبوب علیہ السلام کو دعا بھی کیا تلقین کر رہے ہیں قرآن کریم میں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ کوئی نہ یہ سمجھے کہ کوئی علم کی نہیں، علم کی بڑی علم کی تو باتیں ہیں ساری، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے نا اب دوسرے دن پھر چلے گئے، وہی کیف، وہی سرور، وہی مستی، ہاں پھر شروع ہوا حضرت اللہ کا ورد، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ کبھی ادھر سرگی اٹھ کے کرو نا تسی اللہ، ہر چیز کا کچھ خاص وقت بھی تو ہوتا ہے نا، ویسے تو جس وقت آپ کرو گے سرور آئے گا، لیکن کبھی سرگی آپ اٹھ کے تنہا کرو نا اللہ اللہ، اس کا پھر ایک اپنے لطف ہے۔ آپ فرماتے سارا دن اللہ اللہ کیا، رات پڑی تو میں پھر گھر آ گئے۔ آپ فرماتے جب گھر آیا نا تو بی بی پہلے ہی منتظر کھڑی تھی، آتے ہی کل والا سوال، حبیب مزدوری کی نا؟ آپ فرماتے میں نے کہا میں نے کل سے بھی زیادہ کی ہے۔ وہ پھر پوچھتی ہے اگر کی ہے تو مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا، نہیں وہ سارا ہی مانگ رہے تھے لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے، مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ تو بی بی صاحبہ تھوڑی غصے میں آ کے کہتی ہیں حبیب اب جب کل کام پہ جائیں گے نا تو جا کے پہلے کام نہ شروع کر دینا، پہلے اس سے 2 دن کی مزدوری لینا، اگر تو دے تو پھر اس کا کام کرنا، نہیں تو کسی اور کا کرنا۔ اب رہیے کو صوفی سمجھے گا یہ تیر کس طرح لگتا ہے یار، حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار بٹانا، اسا نہیں یار بٹانا، ہم نے در یار پہ ہی جان دینی ہے، ہم نے نہیں در یار کا چھوڑنا۔ اب فرماتے تیر بن کے اس کا فکرہ یہاں لگا اور میں ساری رات سسٹیاں لیتا رہا، اس نے کیا کیا دیا ہے، جاؤں تو جاؤں کہاں، 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا رب میں کہاں جاؤں۔ اب فرماتے ساری رات میں روتا تھا، کہتے تیسرا دن آیا تو میں پھر چلا گیا، سارا دن اسی طرح اللہ اللہ کرتے گزری۔ اب فرماتے جب رات کا وقت آیا تو بڑا پریشان، او حبیب وہ 2 دن تو ٹال لیا، آج اسے کیا کہنا ہے، پتہ نہیں آگے سے کیا بولے گی، کچھ ایسا ہی نہ کہہ دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے، جو مجھ سے برداشت ہی نہ ہو، میرے محبوب کی کو بے ادبی نہ کر دے۔ اب فرماتے پروگرام بنایا باہر ہی بیٹھ جا،
आधी रात को घर जाऊंगा, सो गई होगी, रात तो गुजारो, कल की कल देखेंगे। अब फरमाते मैं बाहर बैठा जी करेलाई में मशगूल रहा। अब फरमाते जब आधी रात गुजर गई ना तो मैं घर गया तो क्या देखता हूँ, घर का समा ही बदला है, घर से धुआं उठ रहा है, कुछ पकने की खुशबू आ रही है। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, आधी रात को फकीर के घर चूल्हा कैसे जल गया। फिर दिल में ख्याल आया गांव में से किसी को तरस आया होगा, को दे गया होगा कुछ। फरमाते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, बड़े डरते डरते। अब फरमाते उसने दरवाजा खोला तो क्या देखता हूँ, बड़ी खुश है, चेहरा खिला हुआ खुशी से, और कपड़े भी उसने नए पहने हुए हैं। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, ये इतनी खुश क्यों है, वो नए कपड़े कहां से आ गए हैं। अब फरमाते सवाल मैंने खुद से किया, जवाब वो देती है, क्या कहती है, बीब तुसी किहदी मजदूरी करते रहे हो, तुहाडा मालिक तो वाकई बड़ा करीम है। ये किसकी मजदूरी करते रहे, आपका मालिक तो वाकई धन बड़ा करीम है। अब फरमाते मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ। फरमाते हाथ पकड़ के कहती है आगे खुद ही देख ले क्या नहीं हुआ। अब फरमाते जब अंदर गया तो जाके क्या देखता हूं, जिस जिस चीज की जरूरत थी सबका ढेर लगा है, सब ही आया है, सारा कुछ ही भेजा है, सबका ढेर लगा है। कहती है आप तो काम कर रहे थे ना, आपको उसने तंग नहीं किया, आपके मालिक ने अपने बंदे भेजे हैं और सारा कुछ वो दे के गए हैं। अब आप तो रात से आगाह थे, अब रो पड़े, कुर्बान जाऊं तेरी बंदा नवाजी है। और हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं? हमारी बेवफाई की है भाई। हाँ और भाई शादी का एक कार्ड आए महीना पहले हम तैयारियां शुरू कर देते हैं, और दिन में 5 बार हमें अल्लाह के घर से पैगाम आता जाता है कोई नहीं है। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते। तो फिर ये तो वही नहीं ना, कुछ पूछा हो तो उसका जवाब ना आया, तो फिर जवाब क्या आया, दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते। दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। आप फरमाते हैं, वो कहती है ये आपके मालिक के बंदे आए थे, सारा कुछ वो दे के गए। आप फरमाते हैं मैं रो पड़ा, तो मुझे रोता देखकर वो कहती है अभी रो ना, खाली सामान नहीं आया, साथ पैगाम भी आया। आप फरमाते मैंने पूछा पैगाम क्या है, तो कहती है पैगाम ये आया है हबीब तू काम च कमी ना आन दई, असी मजदूरी च नहीं आन देंगे। अल्लाह हाँ जी, तू मजदूरी में काम में कमी ना आने देना, मजदूरी में नहीं आने दे। और चले हो कभी कुरान पाक खोल के देखो तो सही, अल्लाह ने कितनी कितनी मोहब्बतें की हैं। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़ व मा उरीदु अन युतइमून, और सारा कुछ तो तेरे लिए है बंदे। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़ व मा उरीदु अन युतइमून, सारा कुछ तो तेरे लिए। सेब तेरे लिए, आड़ू तेरे लिए, मछली तेरे लिए, बादाम तेरे लिए है, और गाजर तेरे लिए, गोश्त तेरे लिए, मुर्गी तेरे लिए, और सारा कुछ तेरे लिए। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़ व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवा अर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। और बंदे सारा कुछ तेरे लिए है, लेकिन तू मेरे और मेरे महबूब के लिए हैं। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने उल्ट कर दिया। ना ना, इसको सीधा ही करो यार, इसको और गुलामी मुस्तफ़ा में लग जाओ, गुलामी मुस्तफ़ा में लग जाओ, खूब दुरूद पाक पढ़ो, खूब अल्लाह पाक का जिक्र करो, ठीक है जी। और एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे से मोहब्बत करो। माशाल्लाह ये छतों पे मैं माएँ बहनें भी चढ़ी हैं। चलो जनाब सिद्दीक़ अकबर के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाले से एक बात मैं अर्ज़ करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। मैं इतना ही अपनी बहनों से कहूँगा, मुहब्बत मंडो, मुहब्बत मंडो, मुहब्बत मंडो। जे तू ननाण है तो फिर भरा ते भाभी नूं ना लड़ा, जे तू भाभी है तो फिर ननान नाल अच्छा सलूक कर। मोहब्बतें बांटो, मोहब्बतें बांटो। पता नहीं क्या हो गया हजरत, हमने घरों को मैदान जंग बना दिया है। जेड़े कार जाओ लड़ाई, जेड़े कार जाओ नहीं, मोहब्बतें बांटो, मोहब्बतें बांटो, मोहब्बतें बांटो, मोहब्बतें बांटो। और किबला शाह साहब जो बयान फरमा रहे थे ना, बड़ी ज़रूरत है।
और ननान भरजाइयां दी ना ननान भाभी दी लगदी जी आपस च एडी सीरीयस ना दी गल लिया करो। आहो तुहानूं सही दसन लगा जी। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने बड़ा दर्द बयान किया। आप फरमाते ने मैं पींग चढ़ावन गई ते टुट गई मेरियां वंगा हैं। मैं पींग चढ़ावन गई ते टुट गई मेरियां वंगा मां हुंदी ते होर चढ़ांदी वीरां कोलू मंगदी पई मैं संगा। अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक करो और हिस्सा दो अपनी बहनों को। नहीं मेरी भैन कहती मैं नहीं लेना, उन्होंने पता है मैं हिस्सा लिया तो भरा का ही मूँह डिंगा हो जाना तो भाभी का भी हो जाना। किन्ने भाई किसको नहीं चाहिए सबको चाहिए। तो बेचारी डरती नहीं लेंदी है, उन्हें पता मैं हिस्सा लिया ना भरा ने सीधा बोलना ना भाभी ने सीधा बोलना। नहीं हिस्सा दो हजरत देने से पड़ता है भाई, इतनी मेरी बात याद रखना ना। मैंने फकीरों से अमीर होने का यही रंग सीखा है। दो हजरत दो, इसको जितना दोगे उतना ही बढ़ता जाएगा, जितना दोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। वैसे हमें बड़ा जी मीठा खाना, ये आम बंदे को खड़ा कर लो उसको भी पता है कि मीठा खाना सुन्नत है, लेकिन हजरत पता नहीं ये सुन्नतें हमें क्यों भूल गई। लिखा है कि जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिस्म मुबारक से कुर्ता उतारा गया ना गुस्ल देने के लिए, तो आपकी कमर मुबारक पे निशान था, चंडी थी बाकायदा। तो आपस में बातें शुरू हो गई कि भाई ये किस चीज़ का निशान है। तो बाद में राज खुला कि ये निशान उन बोरियों के हैं जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कंधों पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाएगा। ये नहीं याद किसी को है, ये भी तो याद करो ना। जब इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का विसाल हुआ तो बाद में पता चला कि हजरत अपनी जेब से 100 घरों का खर्चा चलाते थे, 100 घरों का खर्चा। बहरहाल ये वो हजरत जनाबे सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते मेरी हमेशा कोशिश रही कि मैं जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सबकत ले जाऊँ, बढ़ जाऊँ। बड़ी कहते हैं फरमाते मैंने कोशिश की। तो अब वह फरमाते हैं कि मदीना के मज़ाफ़ात में ना एक नबीना माई साहबा रहती थी, वो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने उसकी खिदमत की जिम्मेदारी ले रखी थी। जरा शान तो देखो यार इन लोगों की, ये कौन है कि जिनकी शान में कुरान करीम उतर रहा है। जरा इनकी आज़ज़ी देखो, जरा इनकी तवाज़ु देखो, जरा इनका इंकिसार देखो। या और मेरे मुआशरे का क्या मिजाज बन गया है, जो साढ़े कल पैसा आता है हजरत ही यार ही बदल लेने हैं, पुराने गरीब यार छड़ देने हैं। क्यों? वो पैसे ही ना मांग ले। बंदा जैसे जैसे अमीर होता है गरीब रिश्तेदारों को बुलाना छोड़ देता है हजरत, क्यों? कहीं पैसे ही ना मांग ले। और भाई अगर तुझे अल्लाह ने दिया है ना, को तेरे दर पे लेने आए तो देना, और दे के अल्लाह का शुक्र इस बात पे अदा करना, और या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने देने वाला किया, कहीं लेने वाला नहीं कर दिया। और फरमाते हैं हजरत ने उसकी खिदमत की जिम्मेदारी ले रखी थी, और जब कहीं आप बाहर तशरीफ ले जाते ना तो जाते हुए आप वो जिम्मेदारी किसी की लगा के जाते। तो जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हजरत किसी की ड्यूटी लगा रहे थे तो मैंने देख लिया। जब हजरत चले गए ना तो मैंने उस शख्स से कहा तूने नहीं जाना, आज मैं जाऊंगा और जाके आज कुछ ऐसा करूंगा कि वो अम्मा भी बोल उठे कि वाह भाई वाह, खिदमत तो आज तूने की है। आप फरमाते मैं चला गया, आहिस्ता आवाज से मैंने सलाम ली ताकि वो पहचान ना सके। जब मेरी खिदमत से राजी होगी तो बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। अब फरमाते जाके जितने मामलात थे सारे किए, सफाई की, ताज़ा पानी भरा, सालन बनाया, आटा गूंदा, रोटी खाई, रोटी बनाई। तो अब फरमाते जब मैंने अम्मा जान को बिठाया ना और बिठा के मैंने पहला नवाला उनके मुंह में डाला ना, तो अम्मा जान आगे से कहती हैं आज अबू बकर नहीं है। अम्मा जान क्या कहती हैं? आज अबू बकर नहीं है। अब फरमाते मैंने कहा माँ तुझे तो नजर आता है। वो कहती मुझे नजर नहीं आता। और फरमाते हैं मैंने कहा अगर तुझे नजर नहीं आता तो फिर तुझे किस तरह पता चल गया कि आज अबू बकर नहीं है? तो हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं उस अम्मा ने मुंह खोल के दिखाया और कहती है आने वाले देख मेरे मुंह में कोई दांत नहीं है, मैं ये नवाला नहीं चबा सकती। जब जनाब सिद्दीक़ अकबर आते हैं ना तो क्या करते हैं? पहले नवाला अपने मुंह में डाल के नरम करते हैं, जब नवाला नरम होता है फिर मेरे मुंह में डालते हैं। आज जब सख्त नवाला मुंह में आया मैं समझ गई आज अबू बकर नहीं है। प्यार करो यार एक दूसरे के साथ, लड़न नहीं आए जाते ऐसी। अल्लाह ने हमें लड़ने नहीं भेजा यार, क्या हर मोहल्ला हर घर मैदान जंग बना दिया हमने। मोहब्बत करो हजरत एक दूसरे के साथ, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर जाया करो। हाँ छोटी छोटी मोहब्बत करो एक दूसरे के साथ, मोहब्बत करो एक दूसरे के। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना,
दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, ठीक है जी। हाँ, नमाज पढ़नी है, ठीक है जी। अल्लाह का जिक्र करना है, दुरूद पाक पढ़ना है, ठीक है। और दुआ करनी है, या अल्लाह सानू सरगी उठन दी तौफीक अता फरमा। आपको नहीं पता सरगी क्या क्या होता है। जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, खुला ही दरबार मुहम्मद अरबी दा। सरगी उठा करो और नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने दुख सुनाया करो। उम्मती जो करे फरियाद हालेदार, मुमकिन नहीं खैर बशर को खबर न हो। और ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया है। असाए कली मजदाए गजब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। जहे इज्जतो तिलाए मोहम्मद, के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी है। मांगो हजरत जी, तके खांडे दिया सारे ये सही। वो अल्लाह हजरत ने पहले ही बयान कर दिया, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, ना छोड़ो यार, ना छोड़ो अल्लाह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का दर। नमाज पढ़ो, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचो, और इन सूफिया से, इन मशाइख से, इन बुजुर्गों से हजरत जी अपनी वाबस्तगी रखो। हाँ चलो, ये हम तो कुछ भी नहीं ना, कुछ भी कुछ लफ्ज़ है, हम वो भी नहीं है हजरत जी। मैं किसी में अपनी बात कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन इन बुजुर्गों की क्या शान है, कुर्बान जाऊँ। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मामूल था कि आप रोज हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास जाया करते थे, रोज बिला नागा। रात को आप हजरत की मजलिस में जाके बैठा करते थे। तो जो हासिदीन थे ना, उन्होंने कलाम शुरू कर दिया, ओ भाई आप तो इमाम हैं, मुजतहिद हैं, आपको क्या लोड़ पड़ गई ये दीवाने के पास जाने की, हैं इस बाबे के पास जाने की आपको क्या लोड़ पड़ गई। तो जब बात ने जरा जोर पकड़ लिया ना, तो फिर एक दिन इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि तआला ने उसका जवाब क्या दिया। आपने फरमाया, बात सुनो, मैं शरीयत का बड़ा जानने वाला हूँ, ठीक है। मैं इन लोगों के पास कहाँ जानता हूँ जिनकी शरीयत है, ये उनके बड़े जानने वाले हैं। तो चले वो पैसे वही लभने जेड़े मुकद्दर बेचने, ना वध लभने ने ना घट लभने ने, क्यों परेशान होंगे हो। जाओ हजरत, ये आस्ताने, ये हमारे बुजुर्ग, ये हमारे मशाइख, ये हमारे सूफिया, ये जान है हजरत हमारी। जाया करो जरूर, जाया करो जरूर, अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। इंशाअल्लाह फिर कभी अल्लाह ने वक्त दिया, क्योंकि मैंने जो ज़हन बनाया था मैं उससे काफ़ी ज़्यादा बोल गया। तो बुजुर्ग बैठे हैं भाई, मैं भी मुँह फट सा हूँ, तो अगर कोई बेअदबी कर गया तो नहीं है, फिर सुधार कर ले, वक्त काफ़ी हो गया है, बुजुर्ग बैठे हैं। तो मुझे, मैं आगे ही जो है ना, मैं बस जब बोलता हूँ तो फिर जो मुंह में आता है बोलता जाता हूँ। तो बुजुर्ग बैठे हैं भाई, को अगर बेअदबी हो गई, कुछ बात ऐसी कर गया, कुछ कह गया, तो माफ़ फरमा देना। और अल्लाह का रसूल भी बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले हैं। हाँ हजरत, एक दुआ जो हर सुन्नी करो, वो क्या यार, अल्लाह साढ़े वड्डियां नूं इत्तेफाक इत्तेहाद अता कर। हाँ हर सुन्नी दुआ करो यार, इस वक्त बहुत ज़रूरत है यार, दुआ करो। वमा अलैना इल्लल बलाग।